welcome to Yopedia and this is Shikha. So guys, if you are also preparing for BPSC ITI principal post and as we guys know that candidates have been shortlisted for the interview and it can become anytime, right? So all those who are preparing, this particular video is going to be for very helpful for all of you, because this particular documentation which you can see on my screen is containing a lot of information related to ITI principal post and different HR questions it is relating. HR basically is a domain and it's a part of selection of your interview in which your personality is going to be showcased, your confidence level, your communication skills and your skills and knowledge we're going to be check it out, including your project and internship and lot of things, right? So this particular documentation is also including a lot of information related to different types of HR questions, which is including different domains and subdomains, right? In which we are going to discuss about general HR question, basic HR questions in ITI related to ITIs, basic HR question related to functions, roles and responsibilities of ITI principal, government schemes and programs, vocational education, NEP 2020 related to that Bihar Public Service Commission and all of these things, right? Let's just start guys, that what can be the expected and most important HR question you can expect in your interview. Now we have just discussed this. These things we are going to be discussed over in this video. General HR questions concern challenges vocational education, about affiliation inspection, courses NEP 2020 and education India's youth population, right? As we know that this position is basically a heading position in ITIs, where you have to be head over all the full basically ITI, and you have to be look after your administrative work, your academic heading, right? You need to be look after your faculty, your training of trainers and all these things. This is the basically basic, all we can say in the layman. These are the duties of a ITI principal, right? But rest there are number of functions which a ITI principal is doing, right? And ITIs are basically, this is industrial training institutes basically, which is providing vocational education to the students and getting placed in a better place, on a better place in a better companies. NCVT and SCVT, that is National Council for Vocational Training and State Council for Vocational Training, are heading over these ITIs, right? Now what are the roles and responsibility of an ITI principal? Just for overviewing that, administrative duties to handling over the admissions and portfolios and all these things. Academic head, if I have to check it out, that providing qualitative vocational education to the students and to provide placement to the students also, right? After that, some other works are there, that is coordinating with governing bodies and tie up also with the industries and funding agencies. Workshop and placement and conflict resolutions. These are some duties of ITI principals. Now general HR question, first of all we have to be discuss it out. Your general HR question includes, tell me something about yourself. First of all your introduction would become, then they can ask you about your strength, weaknesses, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, आपके अभी तक बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, ठीक है? आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, एक ग्रेट लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं, बिकॉज बच्चे इसमें बोलते हैं कि मैम वो एक लीडर होता है आईटीआई का, वो सब कुछ हैंडल करता है, तो आपसे वहीं से क्वेश्चन निकलता है कि ग्रेट लीडर की क्वालिटीज क्या होते हैं, ठीक है? स्ट्रेंथ वीकनेस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, आप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे रिजॉल्व करोगे चीज़ों को, और अंडर प्रेशर हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज योर वर्क. दिस काइंड्स ऑफ कैन बी योर एचआर क्वेश्चंस, जनरल एचआर क्वेश्चंस बेसिकली, ठीक है? एज यू कैन सी ये पूरी लिस्ट गिवन है, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड करके पढ़े तो आपको पूरा इसमें एक एक क्वेश्चन का पता लगेगा, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन अबाउट आईटीआईज. देखो आईटीआईज के रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है, इट मींस आपको आईटीआईज के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए, ठीक है? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव. एनसीवीटी क्या होता है, एससीवीटी क्या होता है, ठीक है? किसके अंडर जो है आईटीआईज काम कर रहे हैं, कितने आईटीआईज हैं ऑल ओवर द इंडिया एंड इन योर पर्टिकुलर स्टेट. अगर आप बिहार की बात करो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपके बिहार में कितनी आईटीआईज हैं, प्राइवेट कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, और पब्लिक प्राइवेट इसमें पब्लिक और प्राइवेट आईटीआईज में क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं,
ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से कैंपस विजिट के लिए, या फिर कहाँ कहाँ बच्चे ट्रेडिंग में या फिर इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ बच्चे जाते हैं, किन कंपनीज में, किन इंडस्ट्रीज में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट रोल डज द प्रिंसिपल प्ले इन द सक्सेस ऑफ एन आईटीआई। ठीक है, प्रोसेस क्या है एफिलिएशन की आईटीआई इंस्टीट्यूट विद एनसीवीटी। एनसीवीटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके साथ अगर कोलैबोरेशन है तो उसकी क्या प्रोसेस है। These are some common and very basic ITI questions, HR question. ठीक है, coming toward the vocational education. Now vocational education क्या होती है? vocational education में, vocational training में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, किन किन कोर्सेज के साथ वो अलाइन है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड आपके वोकेशनल कोर्सेज की पूरी फुल फ्लेश्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हाँ इस क्लास के लिए ये वोकेशनल कोर्स होता है, कब ये चीज स्टार्ट हुई थी, व्हेन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्यों स्टार्ट हुई थी, why we are prioritizing skill related program over traditional method of studying. ठीक है, and why students are more pursuing this vocational training, what is the scope of vocational training, vocational education, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। These are some basic questions कि आप vocational education को कैसे improve करोगे, उनकी quality को। ठीक है, चैलेंज क्या आते हैं vocational training में, वोकेशनल एजुकेशन ने इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट किया है, एंड क्या होती है, क्यों उसको एस्टैब्लिश किया गया है। स्किल बेस्ड लर्निंग ओवर ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, ये क्या होता है। ठीक है, एंड क्रिटिकल कंपोनेंट्स क्या है वोकेशनल करिकुलम के, टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेटेड है वोकेशनल ट्रेनिंग से, प्रिंसिपल का क्या रोल होता है क्वालिटी ऑफ लाइक वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करने में। ठीक है, दीज आर सम बेसिक HR क्वेश्चन रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Coming towards the another domain of HR part, that is challenges in vocational education. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या चैलेंजेस आते हैं, प्राइवेट ITIs में, एंड पब्लिक में क्या आते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एक्सपेंसिव होता है, तो जो लोग ITI प्राइवेट होती है बेसिकली इट, और ऑल्सो वाइसा वर्सा भी हो सकता है, उनका बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड लाइक दैट, दिस कैन बी द थिंग्स। ठीक है, वहां पे बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है रेदर देन द प्लेसमेंट, अनदर करिकुलम कैन बी फोकस्ड, वो एक डिसएडवांटेज उसमें आप ले सकते हो। फिर जो पब्लिक ITIs होती हैं वहां पे बच्चों की पॉपुलेशन और यू कैन से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर राइट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो सीट्स आर लेस और समथिंग लाइक दैट, या रेड टेपिज्म इज देयर, डिले होता है किसी चीज में, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, रेस्ट आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट इन ITI कैसे करोगे आप। ठीक है, इश्यूज जो ट्रेनिंग फैकल्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड इश्यूज है उनको आप कैसे डिस्कस करोगे। ठीक है, एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वोकेशनल एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करेगी, आप मॉडर्नाइज ITI फैसिलिटीज से कैसे क्या क्या मेजर लोगे। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का ITI ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट है, रिसर्च ने क्या रोल प्ले किया है चैलेंजेस को ओवरकम करना। जब हम रिसर्च करते हैं ऑब्वियसली वी गेट अ सॉल्यूशंस, राइट। नाउ नेक्स्ट डोमेन इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड फ्रेमवर्क्स। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप के जो स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ITIs के लिए ऑपरेशन के लिए उन्होंने क्या क्या बेसिकली रिफॉर्म्स लाइक नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी बनाए हैं, दैट यू नीड टू बी अवेयर। ऑब्जेक्टिव ऑफ NAPC क्या होता है, NCDs ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया है स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अलाइन विद वोकेशनल एजुकेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत है क्या। ठीक है, NCVET ने क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया ITI में, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन क्या था, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ब्रीफ होना चाहिए। BPSC से रिलेटेड, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आते हैं कि BPSC के फंक्शंस बताओ, इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, और बिहार में इसने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्ट्रक्चर क्या है एग्जाम्स का, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए रिक्रूटमेंट में क्या है, एंड विजन एंड मिशन क्या है BPSC का। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, क्योंकि इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप पब्लिक सेक्टर के लिए जा रहे हो, वो भी एक प्रेस्टिजियस जॉब के लिए, राइट। नाउ रोल एंड फंक्शंस ऑफ ITI प्रिंसिपल, डे टू डे ऑपरेशन में एक प्रिंसिपल कैसे मैनेज करेगा, आप कैसे मैनेज करोगे, स्मूथ ऑनबोर्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप कैसे चीजों को एडमिशन टाइमली इंश्योर करोगे। ठीक है, जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है उनको आप कैसे ऑप्टिमाइज वे में यूज करोगे फॉर द बेटर प्रोडक्शन, फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी।
राइट, फॉर द स्टूडेंट्स। एंड अगर लेस डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ है तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे, कन्फ्लिक्ट कैसे रिसॉल्व करवाओगे, कोलैबोरेशन कैसे करोगे इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है, इनिशिएटिव क्या लोगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टाफ के लिए, ठीक है, इंस्पेक्शन को, जो इंस्पेक्शन विजिट होती हैं उसको आप कैसे मैनेज करोगे और कैसे एफिलिएट करोगे फंडिंग बॉडीज से, राइट। एफिलिएशन, इंस्पेक्शन एंड फंडिंग रेगुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही जीके कह सकते हो आप ना, रिलेटेड टू वेरी जनरल नॉलेज रिलेटेड टू आईटीआईज, जिस फील्ड में आप बेसिकली जा रहे हो उसके डोमेन के लिए वास्ट नॉलेज इसमें पूछी गई है एंड आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, फंडिंग मैकेनिज्म क्या है आईटीआई इंस्टीट्यूट्स का, एनसीवीटी और एससीवीटी कैसे इंस्पेक्शन के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए आईटीआई एफिलिएशन के लिए, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग आईटीआई ऑपरेशन में उसका क्या रोल है, ठीक है, पेनल्टीज क्या है अगर आप रेगुलेटरी नॉर्म्स को वायलेट करते हो, ट्रांसपेरेंसी क्या है फाइनेंशियल डीलिंग्स में, राइट। These are some important HR questions related to, very important I found it, that डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग का क्या रोल है आईटी ऑपरेशंस में, एनसीवीटी एंड एससीवीटी का क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेज एंड एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, जो कि 2020 में दोबारा से वो एस्टैब्लिश की गई थी कुछ रिफॉर्म्स के साथ, विद स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिजिटल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट, राइट। उसके बिहाफ पे, उसके कंसिडरेशन में यू शुड नो दैट बीपीएससी या कोई भी, जैसे आप मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग से अगर मैं रिलेट करके बात करूं तो वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड उसमें क्या रिफॉर्म्स थे, यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में क्या क्या स्कीम्स लॉन्च हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, यू शुड अवेयर अबाउट दैट। एज एन आईटीआई प्रिंसिपल तो आपको चीज पता ही होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। That is very important part basically vocational training in like as an NEP 2020। अब देखो की प्रोविजंस क्या है वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर NEP 2020, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन को कैसे प्रपोज किया NEP 2020 ने, एंड आईटीआई का क्या रोल है NEP 2020 को अचीव करने के लिए, चैलेंजेस क्या है NEP 2020 में आईटीआई में इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग, अब डिजिटलाइजेशन का एरा है और इतनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुकी है कि वी कैन नॉट इवन सर्वाइव विदाउट दैट, ठीक है। तो उसके लिए वोकेशनल जो हम प्रैक्टिकल जो है इंडस्ट्रियल स्किल्स हम सीखते हैं बेसिकली, उसके लिए तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, उसका क्या रोल है और कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल्स की वोकेशनल एजुकेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यू शुड अवेयर अबाउट दैट, इसको थोड़ा सा पढ़ के आना कि वोकेशनल एजुकेशन है या अपार्ट फ्रॉम दिस सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है, किस टाइप की सॉफ्ट स्किल्स को वोकेशनल एजुकेशन के अंदर काउंट किया गया है, यू नीड टू बी प्रिपेयर एज एन प्रिंसिपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनटिल और अनलेस आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनर्स को, अपनी फैकल्टी को उस चीज से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, राइट। एजुकेटिंग इंडियाज यूथ पॉपुलेशन, यूथ लाइक रिलेटेड HR क्वेश्चन की एज अ यंग यूथ प्रोफेशनल व्हाट आर यू गोइंग टू बी मेक अ चेंज अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल सेलेक्ट होते हो तो, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन को आप कैसे एड्रेस करते हो एज एन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, और लाइक वो कैसे कर सकती है, क्या बेसिकली रोल प्ले किया है रूरल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में आईटीआई ने, ठीक है। मेथड क्या है स्टूडेंट एंगेजमेंट को एनहांस करने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे स्टूडेंट को वो करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी को मतलब इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ एवरीबडी, इट्स नॉट कप ऑफ टी एवरीबडी, तो वो उस चीज को थोड़ा सा सोचते हैं, दे विल टेक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड टू बी टेक। फीमेल पार्टिसिपेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे एनहांस करोगे, एनकरेज करोगे आईटीआई कोर्सेज में, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड सॉफ्ट स्किल्स अगेन, and empowering India's youth, what do you what is your vision basically related to that। एडमिशन एंड प्लेसमेंट, अगर सडन बहुत ज्यादा एडमिशन आ जाते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे, स्टूडेंट के रिटेंशन की स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने की क्या स्ट्रैटेजीज है बेसिकली, ठीक है। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, एड्रेस ग्रीवेंस टू रिलेटेड एडमिशन कैसे आप करोगे एड्रेस उनको, ठीक है। अफेक्टिव वर्कशॉप को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, एंड उसमें आप कैसे प्लान करोगे आईटीआई के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैलेंजेस क्या है प्लेसमेंट को ऑर्गेनाइज कराने में और आप उनसे कैसे ओवरकम करोगे, ठीक है। हाउ डू यू इंश्योर इंक्लूसिव एडमिशन इन प्लेसमेंट ऑल्सो। रूल्स एंड कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आईटीआई ऑपरेशंस पे एप्लीकेबल हैं,
एंड लेबर लॉज के साथ लेबर लॉज के बारे में आपको क्या पता है एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट कंप्लायंस विद दैट। स्टेट अथॉरिटीज का क्या रोल है आईटीआई की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में। फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच डिस्प्यूट्स आप कैसे हैंडल करोगे एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी इन कैंपस हाउ वुड यू डील विद दैट। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को हाउ वुड यू डील विद दैट। नाउ बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बिहार के कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स एंड बिहार से रिलेटेड जितने भी लाइक हेरिटेज बेस्ड या कोई भी बेसिकली हिस्ट्री बेस्ड जो एचआर क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। यू नीड टू बी रेडी फॉर योर नेटिव स्टेट, नेटिव डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका सिटी विलेज जो भी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड एवरीथिंग दैट नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट एजुकेशन, इम्पैक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का क्या इन्फ्लुएंस है, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग। कल्चर ऑफ बिहार, मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशन क्या है, छठ पूजा वेरी बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहार, ये आपको पता होना चाहिए, म्यूजिक, डांस, फोक म्यूजिक्स। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना, उसको क्या है बेसिकली बिहार का कल्चर हिस्टोरिकल नरेटिव, उससे क्या लाइक सिग्निफिकेंस है, राइट। बोध गया वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार प्रिजर्व एंड प्रमोट इट्स हेरिटेज साइट्स लाइक बोध गया और विक्रमशिला से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, कुजीन्स के बारे में। गवर्नमेंट स्कीम्स बिहार के अंदर, कन्या उत्थान योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, जल जीवन, हरियाली मिशन, हर घर नल का जल, ये इन जैसी जो स्कीम्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा पूछा जाएगा, उनके रोल क्या है, मेजर इनिशिएटिव क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आईटीआई प्रिंसिपल एचआर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो हमने नंबर ऑफ डोमेन्स इसमें डिस्कस करी है, वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड, एनईपी 2020 से रिलेटेड, राइट, बिहार के बेसिक एचआर क्वेश्चन, आईटीआई से रिलेटेड बेसिक एचआर क्वेश्चंस, राइट, एंड व्हाट नॉट, आईटीआई से रिलेटेड बेसिक एचआर क्वेश्चन एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब जब आप इस वीडियो को देखोगे अपना पेन पेपर आप लेके बैठो और उसको नोट डाउन करो। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन कवर कर रहा है ये अपने आप में एक पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो ना, लाइक यू विल क्रैक इट आउट। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई और हो सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड यू नीड टू प्रिपेयर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार की हिस्ट्री एंड ऑल लाइक दैट, मतलब वो एक जर्नल अवेयरनेस है। ठीक है, कि आपको अपने प्लेस के बारे में कितना पता है। एंड रेस्ट इज योर ऑल HR पार्ट दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन शोकेसिंग योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दिस पर्सपेक्टिव। ठीक है, all the very best students, and please download this documentation from your Yourpedia panel and you can just read it out and prepare with Yourpedia mentors. Till then, all the best, take care. If you found any doubt, any query, you can reach out to us Yourpedia.